Section C of chemistry question paper contain the questions of 3 marks, and 3 mark question will not normally not a single question. It is always divided into sub parts and the weightage given. If 3 sub parts would be there, then 1 mark for each, and if 2, then we are having the 1.5 for each sub part. Here the question is from the 2024, and it was in all the sets, set 1, set 2, set 3. In 2024 chemistry जो question paper था, it was having in 3 sets. और ये questions जो यहाँ पे मैंने 2 questions लिखे हैं, these questions were in all the sets and give the structure of the major product expected from the following reactions. Means basically ये जो क्वेश्चंस है ये इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं एंड वी हैव टू बी आंसर वन बाय वन. एंड द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्सक्यूज मी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इथेनॉल मींस एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट एल्डिहाइड कीटोनल कार्बोक्सिलिक एसिड. So reaction means here the question is from the chemical property of the aldehydes, क्योंकि इथेनॉल की बात की गई है. तो let write the answer for the sub question of section C questions. तो A जो part है that is asking first ethanol, how we will write excuse me, how we will write the ethanol. This is the ethanol and it is going to react with the methyl magnesium, means methyl and magnesium and bromide. So ये क्या है? This is the Grignard reagent, Grignard's reagent. And here the question is from the chemical property of the aldehydes और ये है ethanol. What we have to do? Reaction लिखना है and followed by hydrolysis. Whatever the product we will get here and then इसको हम क्या कहते हैं? Adduct. अगर आपको याद हो in your जो भी आपने throughout the year आपने पढ़ा है, so whatever the product is formed after the reaction of aldehyde with the Grignard reagent एक adduct बनता है, because this is a nucleophilic addition reaction. एक जो भी न्यू मॉलिक्यूल या एटम ऐड हो जाएगा तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एंड उसके बाद जो भी बनेगा उसका हमने हाइड्रोलिसिस करना है, मींस वी हैव टू बी ऐड दी वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइनल जो भी प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे शो करना है. सो दिस इज द वे वी हैव टू जस्ट राइट द आंसर. तो किस तरह से हम रिएक्शन लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक addition reaction, and aldehydes are giving this reaction easily because यहाँ पे steric hindrance नहीं होता और positive inductive effect भी कम होता है. तो यहाँ पे इस तरह हम इसको किस तरह लिख लेंगे? that is ethanol can be written like this, CH3 COH. and as we know that this carbonyl group is polar in nature, so partially negative and positive charge will appear here. and while it is reacting with the Grignard reagent, वो हमें दिया है कि यहाँ पे R क्या है? that is methyl और magnesium और साथ में bromide. so this will be taking the electron towards itself, it will attain a negative charge and this magnesium will attain a positive charge. Now what will happen? The opposite charges attract towards each other. You are not supposed to write the mechanism there, I'm just explaining it why this product is forming. तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? that is CH3 COMg Br, and then what we are having here? CH3 and Br, sorry H will be there कि यहाँ पे H है तो H ऐसे आ जाएगा H. नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है आइदर इस तरह से पूछ लिए जाएं
या आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पे इथेनॉल है और ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, आपने कैटलिस्ट लिखना है कि क्या कैटलिस्ट है या मैकेनिज्म लिखना है। क्वेश्चन आइदर दिस टाइप और वी आर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड राइट द मैकेनिज्म। तो ले दे के क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस तरह से ही आएंगे। सो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट बना है, इंटरमीडिएट है जो। और देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीन्स वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट। अगेन यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड व्हाट वी विल हैव CH3COH, CH3 एंड H। सो अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग दी OH, COH से हमें OH मिल गया है, मतलब हमें अल्कोहल, वी गॉट अल्कोहल फ्रॉम दी एल्डिहाइड ऑन दी रिएक्शन विद दी ग्रिग्नाइट रिएजेंट। जो हमारा अल्कोहल है वो कैसा बन गया है, अल्कोहल के पास एक हाइड्रोजन है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ मिला है। ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिफरेंट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज इन समवेयर एल्स, कुछ क्वेश्चन की जो मेथड था वो अलग था और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन्होंने कुछ और तरह से पूछा है। आंसर जो है दैट इज द सेम, रिएक्शन विल बी सेम बट द वे ऑफ क्वेश्चन इज different. So watch my videos for the more explanation, and here we are getting the secondary alcohol. So हमें क्या मिल गया, secondary alcohol, and क्या नाम है इसका, अगर हम देखें तो 1 2 3 that is the 2-propanol, प्रोपेनॉल, ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिला है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व कर लिया एंड व्हाट इट इज, this is the reaction of ethanol with methyl magnesium bromide and followed by the hydrolysis। तो इसका ये हमने complete reaction लिख दिया है। You are not supposed to write the mechanism but अब show तो हमें करना ही पड़ेगा। So this is the final, हम इस तरह से आंसर लिख लेंगे। Now move to the next question, जो second सब part है what it is and let's see from which unit it is, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आल्सो फ्रॉम देयर। द हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1ene, हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1ene मींस एल्कीन की, जर्नल एल्कीन की अगर हम हाइड्रेशन करें तो हमें क्या मिलता है, और मिनरल एसिड की प्रेजेंस में अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड हियर this is the preparation of alcohol from the alkene and हम इस तरह से भी लिख सकते हैं preparation of alcohol from the alkene और hydration of alkene for the preparation of alcohol। So let's see किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। hydration of butene, B part है that is butene, so 1 2 3 and 4 ब्यूटीन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड रेस्ट वी विल राइट लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा ब्यूटीन। नाउ इट सेज हाइड्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रेशन कर रहे हैं तो प्लस HOH, हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज द हाइड्रेशन, hydration. This is just, I'm just giving you the way and the reason why we are writing this. In your examination you have to just write the statement only, hydration means addition of a water molecule, addition of a water molecule, हमने water molecule को add करना है, addition of a water molecule, और here this addition is going in the presence of a mineral acid। तो mineral acid है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H2SO4 mineral acid दिया हुआ है। जब भी ये बात ध्यान में रखना, जब भी हमें एल्कीन का हाइड्रेशन करना है, जर्नल एल्कीन का हाइड्रेशन करना है अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए,
मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मार्कनोवा रूल फॉलो होता है. तो विच रूल इज वर्किंग हियर Markovnikov's rule is working here, is rule working here. And what it is working, क्या कहता है this rule? This rule is saying the negative part of the nucleophile or the negative part जो हमारा है that will go to the carbon, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है. अगर एल्कीन आपका सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज डबल बॉन्ड की एक तरफ पे एक ही कार्बन है और दूसरी तरफ पे 3 कार्बन है, तो ये असिमेट्रिक यहाँ पे जो है इस तरह से जो असिमेट्री डेवलप हुई है, सिमेट्रिकल हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है. ऐसे में जो कार्बन है दोनों के पास हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग है. एक तरफ इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ जो डबल बॉन्ड है उसके पास 2 हाइड्रोजन है. और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन के पास आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं. तो ये भी यहाँ पे ये चीज वर्क करेगी, इसे हम मार्कनोवा रूल कहते हैं. whenever we are preparing alcohol from the alkene or hydration of alkene, then Markov rule will be work and the negative part of the nucleophile will approach to the carbon of double bond where the hydrogens are less. So means अगर मैं इन दोनों को इस तरह देखूं तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस, एंड दिस विल अप्रोच कौन से कार्बन पे अप्रोच करेगा फिर, जिसके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है. एंड व्हाट वी विल गेट दैट इज CH3. अब हम कंडेंस करके लिख लेंगे CH2 एंड C, इधर OH लगा लो एंड H एंड CH3. तो व्हाट यू गॉट, क्या मिल गया, दैट इज 2-butanol. What we got, the 2-butanol, मतलब हमें अल्कोहल मिला है. And this is the way how we will prepare the alcohol from the hydration of the alkene, and this method follow the Markov rule. Clear? Okay. Then move to the next question. The next question, section C जो है, again the question is from the organic chemistry and the question says reaction of phenol, means still we are on a chapter alcohol phenol ether, but अभी हम एलिफेटिक को छोड़ के एरोमेटिक जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है वहां आ गए हैं. फिनॉल जो है रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है. तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल लेना है मींस यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग के साथ होता है और इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल. दिस इज द फिनॉल और हमने इसे ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है. दिस इज ब्रोमाइन वाटर एंड व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे जो हमारा फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है. ड्यू टू दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड इट इज हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो पैरा जो पोजीशंस हैं हाईली रिच इन इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे दिस इज कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स है. एंड जहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में वो बताया हुआ है, आप उनको चेक कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ये जो ब्रोमाइन है इट विल अटैच टू ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो एक साथ अटैच करेगा. वी आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल यहाँ हमें मिल जाएगा. तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू दी high electron density at ortho para position, what we will get, this coming electrophile will attack the ortho para position and यहाँ से हर जगह से एक HH भी बाहर निकलेगा, 3 H बाहर आ जाएंगे, H भी यहाँ साथ में बन जाएगा. तो 3 बार निकला, 3 आ गए और 3 आपने यहाँ लगाए, ये 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लिख देंगे. एंड व्हाट इट इज, दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्या है, फिनॉल. ठीक है. और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो साइड में डिक्लेयर कि वहां से जितनी जगह आप लगाएंगे वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये हमारा फिनॉल है. एंड व्हाई दिस हैपेंस, सो हियर ऑर्थो एंड पैरा
position are rich in electron density due to resonance and यहाँ पे बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये भी मत लिखिएगा, जस्ट राइट द आंसर एंड यू विल गेट अ 1 मार्क फॉर दैट एंड जस्ट राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट जरूर लिखिएगा. नाउ लेट्स सी one more question which were in a section C in all the sets of 2024 and what was the question क्या है, calculate the EMF means electromotive force हमने find out करना है of the following cell मुझे provided है, cell क्या है that is means हमें electrochemistry unit से question पूछा गया है, निकल है solid state में है एंड जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर का है एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ गया, यहाँ पे 0 था वहाँ पे +2 हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया है और ऑक्सीडाइज होने के बाद कंसंट्रेशन भी मिल रही है दैट इज 0.1 मोल प्लस सिल्वर जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया है मींस यहाँ पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और 0 में चला गया तो मतलब रिड्यूस हो गया. तो हम थोड़ा सा हमें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस हमें नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लगानी है बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग कि ये जो निकल है, निकल यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और सिल्वर जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है. सो हाफ सेल रिएक्शन भी आप इजीली लिख सकते हैं, हमें पूछे नहीं है बट यहाँ पे हम हाफ सेल भी लिख सकते हैं, इसके लिए अगर हाफ सेल लिखना है वो भी आप आराम से लिख सकते हैं. मुझे और भी साथ में कुछ गिवन चीजें दी हुई हैं, गिवन है दैट इज ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल दिया हुआ है दैट इज 1.05 वोल्ट एंड साथ में लॉग 10 की वैल्यू भी दी है 1. तो आपने भी याद कर लेनी है बेटा, अगर log 10 की वैल्यू कहीं आपको ना भी दी हो तो आपने याद कर लेनी है कि log 10 जो है वो 1 होता है. यहाँ पे हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो क्या नर्स्ट इक्वेशन आई होप सभी को याद हो गई होगी अभी. नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन minus 0.0591 divided by n means number of electrons those are participating in oxidation reduction log molar concentration of the ions which are oxidized कितने हैं that is यहाँ पे हम लिख लेते हैं निकल 2 plus and सिल्वर और इसके यहाँ पे दो जो आयंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इस तरह से हमने ये नर्स्ट इक्वेशन लिख ली. अब मुझे ई तो दिया हुआ है, ई स्टैंडर्ड दिया है दैट इज 1.05 लगा लो बेटा उसको माइनस. अब बताए क्या मुझे यहाँ पे ये तो पूछा ही नहीं गया कि आप सेल रिएक्शन लिखिए बट अगर मैं सेल रिएक्शन लिखती हूँ तो ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा दैट निकल जो है वो सॉलिड स्टेट में किस में कन्वर्ट हो गया, निकल 2 प्लस में. तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर दिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. और अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखूं, ये इसलिए लिखना है कि मैंने यहाँ पे n को 2 लेना है, ठीक है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है 2 है बट कैसे है जस्ट मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हमने सिल्वर लिया है, सिल्वर जो था उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसके 2 आयंस लेने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है 2 सिल्वर सॉलिड में, ठीक है. तो मतलब नंबर ऑफ एन कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गए, 2 है ना, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये इसलिए मैंने लिखा ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है. तो यहाँ पे N2 आ गया तो आप लिख लीजिएगा इसकी यहाँ पे
0591 और ये हमने 2 लिख लिया, एन बेटा 2 है, मैंने अभी मेंशन किया। और लॉग निकल जो आयनिक स्टेज पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, दैट इज 0.1 मोल। और जो यहाँ से एम बी हम निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना साथ में। और यहाँ पे सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, दैट इज 0.01 और इसके बाहर 2 पावर लगी हुई है। तो अभी इसे हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे, 1.05 माइनस 0.0591 और 2 ऐसे, अभी तो मैंने इसको ऐसे रखा है, पहले हम लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऐसे रहने दो और 0.1 थोड़ा ऐसे यहाँ तक ले जाओ और यहाँ पे इसको 2 बार लिख लो ऐसे ही, 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, 2 बार लिख लिया। यहाँ से कितने ऊपर चले जाएंगे, 1 2 मीन्स यहाँ पे 4 चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कितने नीचे आ जाएंगे, 1, इससे कट कर दो, कितने रह गए, दैट इज ये वापस इसी तरह ले लो, 1.05 माइनस 0.0591/2 और लॉग, तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी चीज को बेटा जो 1000 है, 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया आपका 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास आ गया 1000। मतलब कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज 10⁻³, क्योंकि मुझे ना log 10 की वैल्यू दी है तो मैं उसको उस फॉर्म में लेके आ रही हूँ। जब इसका हम log निकालते हैं, उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज 0.05 माइनस 0.0591/2, 3 इंटू log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी है हमें, तो यहां से आगे फर्दर मैं इधर लिखने जा रही हूं, दैट इज इक्वल टू 1.05 माइनस, और आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1 आ जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एंड 3 7 27, 2 कैरी, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 बाय 2 भी था ना अभी हमारे पास, 3 1 3 1 3 3 7 9 27 एंड 20, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको 2 से कट भी कर सकते हैं और log साथ में 1 लिख लो, क्योंकि 1 और ब्रैकेट में आप रीजन लिख दो, बिकॉज log 10 क्या है, इक्वल टू 1 है, तो मैंने वहां 1 लिख दिया। अब हम इसको कट कर सकते हैं, यहीं से कट कर लो, तो 2 8 जब 16 और आगे जाओगे फिर 8 आ जाएगा और 1 क्या है 6 आ जाएगा, पॉइंट तो लगा ही हुआ है पहले, तो हम यहाँ पे इसको 5 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1 पॉइंट, ये कट कर गया, 2 8 जो 16 एंड 1 अगेन चला गया 16, 1 अगेन चला गया 12 एंड 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 में से आपने किसको माइनस करना है, 0.8865 को आप माइनस करेंगे, तो कर लो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस करना है बेटा, तो माइनस इसे कर लो, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है सेल का,